Hello and namaskar. My name is Navneet Anand and you're welcome to Bureaucrats India. This is BI Dialogues and I'm pleased to welcome you all to have this, to participate in this BI Dialogues with a very illustrious and eminent IPS officer of the country, Santosh Kumar Singh, who is the SP of Raigarh in Chhattisgarh. I am joined by my colleague, senior colleague, Rajiv Ranjan Roy, and we shall be talking to Santosh ji on policing, community policing, and a host of issues. Many of you are aware that Bureaucrats India is an independent initiative designed to bring out into the public domain stories of good governance by bureaucrats across India, both at the central and state government levels. It aims to capture best practices and stories of good governance by India's PSUs as well. The corporate sector's stories of change, hope, and yearnings of a new India are also captured here. This initiative is designed and managed by Grey Matters Communications and Consulting, India's leading communications and digital media company with over a decade of experience in government and political communication. Bureaucrats India initiative in its digital and offline formats strives to populate the public sphere with good work being done by our dynamic bureaucrats, including the IAS, IPS, IRS, IFS, and a host of other services across India. These are stories that we wish to celebrate and to take to every house of India for understanding the length and breadth of governance that impact our lives every day. We constantly endeavor to be the first source of credible information as far as good practices of bureaucracy are concerned. Bureaucrats India strives to be a vibrant platform for highlighting the latest updates and information about transfer postings and a host of other policy and bureaucratic decisions. Please visit our website, www.bureaucratsindia.in, and our social media handles my team members will get to. At the outset, I express my gratitude in case I forget at the end of the day, the program, to my team members, Sweta Bharti, Pooja Rai, Vigya Dwivedi, Naina Jha, and of course, Rajiv Ranjan Roy for pulling this together. आपका बहुत स्वागत है संतोष जी. मैं राजीव रंजन रॉय साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा परिचय दें. इनको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन छोटा एक परिचय दें और फिर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें. धन्यवाद नवनीत जी. Hello and good afternoon to all of you. Mr. Santosh Singh is an alumnus of prestigious Banaras Hindu University, Varanasi, and Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is an IPS officer of 2011 batch Chhattisgarh cadre. Currently, Mr. Singh is posted as Superintendent of Police, Raigarh. Earlier, he served as City SP, Durg, Additional CP. He also took care of Naxal operations in Sukma. He served as SP in districts of Kondagaon, Narayanpur, and Mahashamand in Chhattisgarh. Mr. Singh has throughout been an excellent student. He has done BA Honors Political Science and MA in Political Science from BHU, Varanasi. He has the degree of MPhil in International Studies from the prestigious Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Mr. Singh has been a gold medalist in post-graduation and was the university topper in his graduation. He has cleared the prestigious JRF and NET examination conducted by the University Grants Commission. That's all. Thank you so much, Santosh ji, for sparing your precious time to join BI this dialogue series. मैं आपका इसमें हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं.
संतोष जी, मेरा पहला सवाल है कि these days community policing has been an area of serious talk and consideration. इस पे काफी बातें हो रही है कि कम्युनिटी को पुलिसिंग से कैसे जोड़ा जाए, and how community policing has evolved in India over the years. पिछले 10-15 साल में जिस प्रकार से कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में चर्चा हुई, इसको आगे ले जाने के दिशा में काफी कार्य भी हुए हैं. तो how do you look at this evolution of community policing and how it has become a kind of tool to ensure effective policing at the grassroots level? Firstly, I would like to thank you, Navneet Anand ji or Rajiv ji, for inviting me this interview for your prestigious institution, Bureaucrats India. I'm very much happy to be here. Your question, as far as your question goes, if you see, there have been this community policing have been very important element across the world with various model and various level of successes. It has been much talked nowadays in India also. And if you see what is a community policing, it's nothing but the engagement of the community for day-to-day policing, or day-to-day the policing issues which actually concerns to them and which affects them. This concept is not very old, but the John Angel in 1971, he propounded community policing as a democratic policing where people are invited to participate in policing work. Simply put together, like involving people in policing work and forging a partnership where both can get benefited. If you find the community side, community gains many ways through community policing, like it improves the policing environment. Immediate environment increases, like policing, the reach of police, they feel it's very near to them. It empowers communities when it is focused on weaker sections. It reduces fear in the minds of public about police and creates a positive environment. And if you find, if you see like positive aspects which it gives to policies, it's manifold. Like information flow is one of the most important thing which happened because of the this community policing. People interact and share informations with police, which helps in prevention and detection of crime. And it also gives work satisfaction for the policemen. It decreases the, if you find, if you see, decreases the tension and conflicts between public and police. More like it improves the relation between the two. And if you see the concept, as I say, it's not very old one, but in ancient India, if you see, there was system of community which always used to involved in a police system. There was community orientation. Mauryan scripture, they tell about community policing works where people were involved in sabha and they were discussed how to go about the public issues. Medieval time, there was sarpanch and mukaddams, which acted as an important police official as well as a bridge to the community. Later in Mughal era also there was a many system like subedars used to do public interaction and take their feedback. But it continuously, gradually it got decreased in British time. And when it was because like it was not citizen centric, it was more militaristic. It was more about the collection of revenue. It was more about the controlling the people. So somewhere people were lost from the policing. In independent India, again, this concept has come in many forms. Different states, they had different schemes
say like village record there in Maharashtra and Gujarat, and Gram and Nagar Raksha Samiti are in Chhattisgarh, and Mohalla Committee in post riots in Maharashtra. Police evolved these concepts, and through these mechanisms, community interaction started again at many levels. And nowadays, it has been much important element where almost all units of police are looking into community policing to involve people in their works. Thank you, Santosh ji, for fantastic response to this question. एक जो महत्वपूर्ण बात आपके सवाल से निकल के आई कि community policing can be used as a tool, engaging the people, forging relations with the masses, and it can also be used as a tool to reduce the fear among the people. अगर इन सारे चीज़ों को हम देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी पुलिसिंग को हम एक इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए to bring to strengthen internal security, हम कम्युनिटी पुलिसिंग को एक पावरफुल टूल के रूप में यूज कर सकते हैं. हाउ डू यू लुक एट दिस प्रोपोजिशन? क्या इसमें इसको उस प्रकार से कैसे यूज किया जा सकता है, एंड आपने अपने लेवल पे भी इसको यूज किया होगा, तो हाउ इफेक्टिव एंड यूजफुल इट कैन बी? इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस या थ्रेट्स जैसे इंसर्जेंसी हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, कम्युनल टेंशन हो, रिलीजियस और इथनिक डिवाइड्स और राइट्स हो, निश्चित रूप से इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. अगर आप देखें, सबसे प्राइमरी जो बेनिफिट होता है कम्युनिटी और पुलिस में इंटरेक्शन का, वो है एक उसमें कहा जाए कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का होता है. और जब इस तरह के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं तो बहुत सारे जब इंफॉर्मेशन हमें पुलिस को अदरवाइज नहीं मिल पाती है, तो इस तरह के जब एक्सचेंजेज होते हैं तो वो लगातार पुलिस के पास लोग आते हैं और बताते हैं कि कौन लोग मिसक्रिएंट्स हैं, कौन लोगों के क्या हाइडआउट्स हैं, उनको क्या मोटिव्स है, एंड व्हाट आर देयर प्लानिंग्स, हाउ दे आर गोइंग टू सबोटेज कम्युनिटी और द कंट्री. सो दीज आर इंफॉर्मेशन फ्लोज कम. और दूसरा चीज रहता है कि आप कम्युनिटी में जब इस तरह की इंटरनल जहाँ भी इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, वहाँ अगर हम मिसक्रिएंट्स को भी जो ऐसे लोग हों जो थोड़े न्यूट्रल और थोड़े मिसक्रिएंट्स होते हैं, अगर उन लोगों को हम लोग पुलिसिंग में इन्वॉल्व कर लें तो हमें और भी ज़्यादा मदद मिल जाती है. ये वैसे ही है जैसे क्लास में किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हों और उसमें कुछ बहुत ही बदमाश बच्चे हों, उन बदमाश बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए और उसको डिसिप्लिन कमेटी का नाम दे दिया जाए, और एक बच्चा जो सबसे बदमाश हो, दबंग हो, उसको मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दे दिया जाए और उसको मॉनिटर बना दिया जाए with sense of responsibility infused to him. So what happens, ऑटोमेटिकली क्लास का जब जो ऐसे मिसक्रिएंट्स लोग पॉजिटिव एटीट्यूड में लाके, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लाके मदद करने के लिए बुलाए जाते हैं और वो मदद करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या एक उससे भी सॉल्व हो जाती है. दूसरी चीज ये है कि ये जितने इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ग्रीवांस होता है, कोई ट्रस्ट डिफिसिट होता है, जिसकी वजह से समस्याएं उभरती हैं. अगर मैं नक्सलिज्म की बात करूं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, जिससे हमारा स्टेट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, वहाँ इस तरह के जब कम्युनिटी इंगेजमेंट होते हैं, जब लोकल लोगों को हम साथ लाते हैं, तो इंफॉर्मेशन तो हमें मिलती है, साथ साथ वो हमें नए नए तरीके सुझाते हैं. दूसरा, उस कम्युनिटी में एक ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट का फैक्टर लगातार बढ़ते जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए. और बहुत बार इस तरह की जो गुडविल जो पुलिस गेन करती है, उसको प्रशासन भी उसको हार्बर करता है और इन चैलेंजेस को आसानी से निपटा जा सकता है. नवनीत जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं लाइव यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी, और फेसबुक पे भी हमें बहुत लोग देख पा रहे हैं. संतोष कुमार सिंह जी ने, रायगढ़ पुलिस ने भी ये शेयर किया था. आप सबों का बहुत धन्यवाद. आप सबों के लिए थोड़ा सा समय मैंने रिक्वेस्ट किया है संतोष कुमार सिंह एसपी साहब से कि हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. एक
सुखद संयोग है कि हम तीनों जो लोग बातचीत कर रहे हैं, तीनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आए हैं। और चूंकि उस तरह की ट्रेनिंग है, और आप तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आए हैं, मेरे जो शिक्षक थे जिनके साथ मैंने एमफिल और पीएचडी किया, जो अभी कुछ दिनों पहले रिटायर किए और अभी भी हमारे आदर्श हैं, वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। और इसलिए हमारा बहुत ही स्नेह और रिस्पेक्ट, आदर रहता है बीएचयू के लिए। जेएनयू से तो हम लोग सब पढ़े हैं, तो नेचुरली वो बायस रहता है। और वो झलक रहा है जिस तरीके से आपने पुलिसिंग को अप्रोच किया है, कि हाउ यू हैव वेरी स्मार्टली woven together the concepts and the practices and the theories that we have learned in all these distinguished universities that we have been privileged to have attended. Santosh ji, little wonder that there has been recognition of your interventions and efforts. You received the very, very prestigious Champions of Change Award by none less than Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu ji, in December for your child-friendly policy in Mahasamud. Now, how do you look at this? इस पे child-friendly policing का कैसे, what was the catalyst for it? कैसे ये आपने इसको फोकस किया, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे थे आप, और बड़ा ये अच्छा था। नेचुरली उसका इम्पैक्ट इस तरह का रहा होगा कि आपको ये चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया। कृपया बताएं हम लोगों को उसके बारे में। जी, देखिए, अगर इफ यू सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शन व्हिच इंक्लूड्स चिल्ड्रन इज अ प्राइमरी मैंडेट फॉर पुलिस। और हमारे पास बहुत सारे, जब हम जिले में पदस्थ होते हैं तो बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं, बहुत ही हीनियस क्राइम होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड इज लाइक चिल्ड्रन आर वेरी फ्रेजाइल, they are very susceptible for exploitation and crimes. तो इन बच्चों के लिए पुलिस के मैंडेट में तो काम है ही। कई बार हमारे जो बिजी शेड्यूल होते हैं उसकी वजह से हम वीकर सेक्शन पर्टिकुलरली बच्चों पे फोकस्ड अप्रोच नहीं रख पाते। लेकिन जब ये चीजें मुझे थोड़ा पिंच करने लगी तो महासमुंद में हमने एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट लाया। जिले में पहले भी हमारी जो पूर्व प्रेडिसेसर्स थी, मिसेस नेहा चंपावत, उन्होंने एक यूनिसेफ से बच्चों पे आधारित एक प्रोग्राम उन्होंने फोर्ज किया था, और जिस पे बच्चों के हित के लिए काम शुरू हुआ था। उसको हमने आगे ले जाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को और भी सशक्त बनाया जाए और बच्चों के लिए काम किया जाए। और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह से चीजें, जैसा मैं कह रहा था कि बच्चे जो होते हैं कि बहुत ही नाजुक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, और कई बार तो वो इतने मासूम होते हैं कि उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसकी they don't report also, and many times they try to hide because they don't trust, even sometimes they don't trust their parents also, कि they will listen or they will just rebuff them. So what happens, like they keep with themselves and they keep getting exploited by someone, many times by their own near relatives. तो इसको लेकर के हमने एक प्रोग्राम सोचा, और ये प्रोग्राम में हमने पहले तो सबसे बड़ी बात थी पुलिस, जो हमारे पुलिस पर्सन है उनमें एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, बच्चों को कैसे डील करना है, उनकी समस्याओं के प्रति आपको सेंसिटिव होना है। इस चीज को लेकर के हमने बहुत सारे वर्कशॉप करवाए। फिर बच्चों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक बाल मित्र का कॉन्सेप्ट लाया। बाल मित्र वो थे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, दे वर द वॉलंटियर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ओनली। Some of them were teachers, paralegal volunteers, common citizens, NGO people. Each thana we selected few बाल मित्र। फिर हमने हर थाने को चाइल्ड फ्रेंडली थाना बनाने के लिए 20 point एजेंडा सेट किया। This included like there should be some separate room to deal with the children, where they should be dealt in civil uniform.
एक ऐसा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वहां रहे जो उनको उसको उनसे बात करने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए रहे। फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए हम लोग बच्चों का जो रूम था उसको पेंट करवाया, उसको कार्टून से पेंट करवाया, उस पे अलग अलग जो बच्चों को पसंद आने वाली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। बच्चों को पसंद आने वाली कार्टून और पिक्चर्स वहां लगाई। उसमें फिर वहां एक गाइडलाइन रखी गई कि बच्चों से संबंधित जो चीजें होंगी, चाइल्ड जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो सुनने के बाद इसको उनको प्लेन क्लोथ में सुनेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर एफआईआर लायक होगा जिसमें एफआईआर दर्ज करना है। तो एफआईआर जो होगा वो त्वरित होगा, फिर उसमें जो कार्रवाई जो प्रगति जो होनी चाहिए उसका रिव्यू करते रहेंगे, जो जल्दी जल्दी करते रहेंगे। और उन एक पूरा जो एक रिव्यू सिस्टम, रिव्यू मैकेनिज्म बहुत अच्छे से किया हम लोगों ने। साथ साथ हमारा फोकस दो तरह के बच्चों पे था, बच्चों संबंधित बहुत सारे। एक वो बच्चे हैं जिनको हु नीडेड प्रोटेक्शन from from different people. दूसरे थे ऐसे बच्चे जिन्होंने खुद they were in conflict with law, they have violated something and they have done some criminal activities. So उनको डील करने का हमने एक अलग मैकेनिज्म बनाया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हमने की, इसमें एक अलायंस हमने फोर्ज किया, क्योंकि बच्चों पे काम करने के लिए देयर आर डिफरेंट एजेंसीज। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होती है, CWC जेजे बोर्ड होता है, चाइल्ड लाइन रहती है, महिला बाल विकास काम करता है, जुडिशरी के पैरालीगल वॉलंटियर सहित उनके विंग्स के कई सारे लोग काम करते हैं। तो इन सभी का एक हमने अलायंस, NGO सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाए और पुलिस को लीड एजेंसी बनाई हमने। और कोऑर्डिनेशन के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया, यूनिसेफ को भी हमने इसमें साथ रखा और ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा रहा। इसके रिजल्ट जो थे बहुत ही पॉजिटिव आए। हमने देखा कि इसमें बच्चों संबंधित अपराधों में काफी कमी आई, बच्चे जो है पुलिस को फ्रेंड समझने लगे। बहुत सारे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जिससे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए। तो ये सारी चीजें बच्चों को तो साथ हमारे पुलिस के पास लाया ही, जो किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, लोगों ने भी पुलिस को इस जो नोवेल आइडिया था उसको बहुत पसंद किया and it was much appreciated and finally it got recognition। और मैं आपको बताऊं इसके बाद जो महासमुंद मॉडल पे पूरे छत्तीसगढ़ में 100 पुलिस स्टेशन को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए कि बच्चों के रूम बनाए जाए, वहाँ उनके अलग टॉयलेट और पानी की व्यवस्था की जाए, बाल मित्र हों। और ये 20 पॉइंट एजेंडा जो मैंने बात की उस पे चर्चा हुई और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसको नेशनल रिकॉग्निशन भी मिला, जैसा आपने कहा। उपराष्ट्रपति द्वारा भी इसको, इस इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज किया गया और उनके ऑफिस से सम्मानित किया गया। जी बहुत खूब, ये तो पूरे देश में रेप्लिकेट होना चाहिए, ऐसे मॉडल्स को रेप्लिकेट करना चाहिए। राजीव जी, दिस इज अ ग्रेट स्टोरी, वी शुड फॉलो एंड डू इट इन डिटेल्स। बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। आपने 18 महीने में करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेन किया महासमुंद में। और जैसे आप जब निकल गए तो व्हाट हैपेंस टू द प्रोग्राम, द कॉन्टिन्यूटी? होता क्या है कि एक अगर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाते हैं, तो आपके मॉडल को देख के स्टेट गवर्नमेंट ने कुडोज टू देम कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया 100 पुलिस स्टेशंस में। ये जो सेल्फ डिफेंस वाली ट्रेनिंग थी उसका अभी क्या, उसका कार्य कैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में बाकी उसका भी रेप्लिकेशन हुआ है क्या state wide districts में? Actually I should thank to the current SP who is continuing this program। और सेल्फ डिफेंस का जो हमने जो सिस्टम बनाया था वो एक इनेबलिंग प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों को, जो बच्चों में कई बार कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बच्चों में कई बार अपने को डिफेंड करने की कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जब कोई उनके साथ नहीं होता, तो उसको
उनको जरूरत रहती है, उसको देखते हुए उनको इनेबल करने के लिए, एम्पावर करने के लिए पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड को हमने ये एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम रखा। क्यों ना चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। और ये सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग का मैं आपको बताऊं, ये मॉड्यूल जो था थोड़ा अनोखा था। ये सिर्फ कराटे की तरह नहीं था, इसमें ऐसी चीजें थी, ऐसी टेक्निक रखी गई जिनसे आपके पास कुछ भी ना हो तो आप कैसे अपने को बचाएं, कैसे कुछ समय के लिए आप अपराधी को, वो आपसे जो पंगा ले रहा है उसको आप हरा सके। जैसे सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन का कैसे लड़कियां यूज कर सकती है, उनके दुपट्टे का कैसे यूज कर सकती है, कुछ टेक्निक बताई कैसे उनको अपने को छुड़ाना हो तो कैसे क्या करे। और ये एक शेड्यूल को बना करके कुछ हमने जो अपने बाल मित्र भी थे और कुछ जो कांस्टेबल थे उनको ट्रेन किया इन सेल्फ डिफेंस टेक्निक में, जो बाकी जब भी स्कूलों को अप्रोच करते रहे और उनको ट्रेनिंग देते रहे। और 1.5 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। और उसके बाद भी मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम चूंकि अच्छा प्रोग्राम था और इसमें हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज इस तरह से किया था कि इसमें वहीं के कांस्टेबल, the lady constable, gents constable, they were made trainers, so they are part of the district police only, so they are there. और जब भी जरूरत पड़ती है, apart from their duty they get time, they go in the schools and they are I'm happy they are still training the school children. और इसका मैं आपको बताऊं कि इसके बाद हम लोग, जब मैंने दूसरे जिला रायगढ़ ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ भी एक पहले से कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ भी लगभग 70,000 बच्चों को, स्कूली बच्चों को, 260 स्कूल बच्चों को अप्रोच करके उनको अलग अलग चीजों में अवेयरनेस किया गया है। इस पे भी हम लोग का प्लान था कि इस जिले में भी हम उस चीजों को लाए, लेकिन कोविड की वजह से कहीं ना कहीं चीजें रुक गई। जो हम लोग इसको यहाँ भी करेंगे और बाकी जगह भी हो सके तो हो सकेगा तो ये इंस्टीट्यूशन के रूप में दूसरे जिलों में भी जाएगा और वहां भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। जी राजीव। संतोष जी, आपने सुकमा में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और सुकमा के बारे में जो सबों को पता है कि वन ऑफ द मोस्ट नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री। तो वहाँ जो आपने प्रॉब्लम को नज़दीक से देखा, वहाँ लोगों का फीडबैक भी आपने लिया होगा, बिकॉज सिंस यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉटरी ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग इंटरेक्शंस भी हो रहा होगा। देन हाउ डू यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द वे आउट? आपने इसको इतने नज़दीक से देखा और लोग बाहर से जो इसके बारे में परसेप्शन है, आई एम श्योर कि देयर हैज टू बी अ ह्यूज हाइटर्स between what the people think from outside about the problem of nationalism और जो आपने देखा होगा। That would be interesting to know from you कि इसको हम किस प्रकार से इसको हम खत्म कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। राजीव जी, आपने जो सुकमा की बात की, सुकमा जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जहां वायलेंस की बहुत सारी केसेस आती हैं। और 2 साल मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। मैं कहूँगा आई वॉज लकी इनफ टू सर्व इन दैट प्लेस बिकॉज इट वॉज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हाट वी गेट फ्रॉम एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। नवनीत जी कह रहे थे कि हम लोग जेएनयू के कुछ वैल्यूज हम लोग रखते हैं। जेएनयू में कई सारी चीजें, जो सॉफ्टनेस होता है, लोगों वीकर सेक्शन के सोचने की बात के प्रति सोचने की जो इच्छा होती है, समझ होती है, वो भी मेरे अंदर भी थी जेएनयू से होने के बाद। और जेएनयू में कहीं ना कहीं हमने स्कूल कॉलेज के दौरान देखा था कि नक्सलिज्म के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वहाँ लोग समझते हैं कि सरकार जो है आदिवासियों को, वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रही है, तो उनके पास रास्ता नहीं है। इसलिए नक्सल जो आइडियोलॉजी है और आर्म्ड जो रेबेलियन है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जस्टिफाई करते, कुछ लोग, मैं कहूँगा। जब मैं ग्राउंड पे गया तो चीजें बहुत ही डिफरेंट थी। आप देखें तो आज जो है, हो सकता है कि कभी वो इलाके, those places were quite underdeveloped. That led to a breeding ground for Naxalism, Naxal ideology. और उसके बाद आप देखिए कि 1968 में जब नक्सलवाड़ी में आंदोलन आया, and around in 1970s it was there in Bastar.
बस्तर जो आज लगभग जिसमें 7 जिले शामिल हैं, नक्सल्स वर देयर। आज 70 साल हो गए हैं, बट 70 सालों में नक्सलियों ने कहा जाए तो लोगों को एक विशियस सर्किल में रखा हुआ है। ये विशियस सर्किल ऐसे कि they said कि development is not there, people are suffering and there is under development। तो नक्सलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी उन्होंने दिखाया, लोगों को सब्ज बाग दिखाया कि हम जल जंगल जमीन आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इससे बाहर निकालेंगे, सरकार का एक्सप्लॉइटेशन दूर होगा और अंडर डेवलपमेंट दूर होगा। जब उन्होंने ये कहा तो हो सकता है कुछ अंडर डेवलपमेंट की वजह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक विशियस सर्किल ऐसा बना कि जब सरकार ने डेवलपमेंट वहां शुरू किया, तमाम स्कीम्स सरकार की गई, तो अब नक्सली दे डोंट वांट दोज एरिया टू बी डेवलप्ड बिकॉज इट विल अफेक्ट देयर आइडियोलॉजी। उनको ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो नहीं मिलेगा। तो वो लगातार दुष्प्रचार करते रहे और उन्होंने अभी भी वही सारी चीजें कहना शुरू करते हैं कि अंडर डेवलप है, इसलिए देखो हमने जो आइडियोलॉजी बताई है ये हमारी आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी है, इसमें हम सबके लिए सब पे सबका कॉमन राइट होगा और हम जो प्रॉपर्टी होगी सब में बटेगी। ये आइडियोलॉजी उनकी सही कहा जाए तो पूरी दुनिया में फेल हो गई, भारत के विभिन्न राज्यों में भी फेल हो गई और यहाँ भी फेल हो रही है। आप देखिए तो ये इशू जो है उसके 2 इशू है, एक डेवलपमेंटल इश्यूज है और दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज है। पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट वहां क्रिएट करें, सिक्योरिटी सिनेरियो क्रिएट करें जहां आर्म्ड जो उनका जो विंग है उसको हम कंट्रोल कर सके ताकि लोग जो है सेफर महसूस करें और पुलिस इसके लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, दूसरी बटालियन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ITBP, CRPF, BSF की बटालियन भी आर्म्ड इलाकों उन नक्सल इलाकों में काम कर रही है। और दूसरा जो है डेवलपमेंट का पहलू है जिस पे सरकार लगातार काम कर रही है और इसका जो वे आउट भी वही है कि डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाएगा लोग आइडियोलॉजी से दूर होते जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले सिक्योरिटी एजेंसियां उन सो कॉल्ड रेड जोन जो काफी डेंस जंगल से घिरे हैं, बहुत रिमोट हैं, जहाँ रोड नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग वहां बने हुए थे, तो उन इलाकों को सिक्योरिटी एजेंसी धीरे धीरे कम कर रही हैं, उनके आधार क्षेत्र को कम कर रही हैं और जैसे जैसे हम लोग और कम करते जाएंगे, डेवलपमेंट और आगे बढ़ते जाएगा, तो निश्चित रूप से इसमें एक रास्ता निकलेगा और ये हो भी रहा है। आप देखिए तो छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ बदल गया है और सही कहा जाए तो माओविस्ट जो आइडियोलॉग है उनको भी समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये आइडियोलॉजी फेल कर गई। वो आर्म्ड गैंग के अलावा आज कुछ भी नहीं रह गए हैं। वो निर्दोष आदिवासियों को भय फैलाने के लिए उनको मारते हैं, सड़कों को काटते हैं, सरकार के डेवलपमेंट स्कीम्स को नहीं जाने देते और आज तक उन्होंने कोई आइडियोलॉजी, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी नहीं दी। पिछले 70 साल, 60 से 70 साल होने जा रहे हैं उनको, 60 साल उन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए हुए, लेकिन उन्होंने क्या आइडियोलॉजी प्रपोज की? तो उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में आना पड़ेगा। वही एक रास्ता है कि वो हथियार डालें और डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसमें उसके जो प्रोसेसेस हैं उस पर भाग लें और उससे लोगों को भी राहत मिलेगी और सबका विकास हो पाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से इस इश्यू को आपने बताया और जो आपने इंसाइट्स दिया संतोष जी, मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए आई ओपनर का काम होगा, बिकॉज डेवलपमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स व्हिच द कंट्री इज फेसिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक अब थोड़ा सा हम दूसरे तरफ रुख करेंगे संतोष जी। अब हम कोरोना के टाइम में भी हमने देखा क्या कि पुलिस के बारे में जो परसेप्शन है, नेगेटिव परसेप्शन, उससे उल्टा पुलिस ने जिस प्रकार से लोगों की सेवाएं की इन मोर वेज देन वन, किसी को दूध पहुंचाना, किसी को पानी पहुंचाना, किसी को ये मतलब उनके कॉल पे पुलिस कॉप्स वेर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। हमें किसी को सब्जी पहुंचा रहा है, हमारे यहाँ भी कोई सब्जी मंगा रहा था, कोई आटा मंगा रहा था और सबको वो सहायता दे रहे थे, जो पैसा दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। और आपने उस दरमियान 12 लाख से ज्यादा मास्क बांटे लोगों में। उन दिनों लोगों के सामने प्रॉब्लम था पानी का, इस और इडेबल्स वगैरह का। तो ये मास्क वाला आइडिया और इसको अपने हाउ डिड यू मैनेज? वो तो वैसा वक्त था कि मास्क अवेलेबल नहीं था,
बट इसके बावजूद आपने 12 लाख से ज्यादा, मैं अगर टू बी प्रिसाइज मोर देन 12,37,000 मास्क आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही बन गया। तो हाउ डिड मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे संतोष जी? देखिए, कोविड जो था वो इट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम, जिसमें पीपल वर कॉट इन द देयर हाउसेस एंड पुलिस वाज ऑन द रोड. Police has to do many works. They were trying to help, as you said, in many ways, providing food packets to people, which people had never seen in their life. People were doing police for taking something from there rather than giving them something. The police was helping migrant laborers. Police was guarding the quarantine center, managing law and order issues, providing security to doctors. So all these things happened. So many tasks were taken up by the police. Simultaneously, there were, if you see, what we saw is that for COVID there was only two things which is important. First thing was ki mask or sanitization, use of mask and hand sanitization and total. And second thing was the maintaining social distances. So there was a requirement to have some awareness drive. We were looking for an awareness drive. और रक्षाबंधन के आसपास अचानक एक दिन एक आइडिया क्लिक हुआ कि रक्षाबंधन आने वाला है और ये जो कोरोना है अभी खत्म भी नहीं हुआ और आगे भी बहुत समय तक चलने वाला है, तो लोगों के लिए क्यों ना, जैसे रक्षाबंधन पे बहनें राखी बांधती हैं भाई को, जिसको बोलते हैं कि रक्षा सूत्र आपने बांधा, तो कोविड के समय तो मास्क ही सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है, तो क्यों ना हम लोग इनकरेज करें और बोलें कि बहनें जो है भाई को राखी बांधने के साथ एक मास्क भी गिफ्ट दे, और भाई भी जो है उसको रिटर्न गिफ्ट में मास्क दे। साथ साथ हमने कहा कि पब्लिक जो है वो सभी लोग एक दूसरे को मास्क दे। इस तरह से हमने एक सोचा कि इसको नाम भी दिया इस अभियान को, एक रक्षा सूत्र इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क का। और जब हम ये प्लान कर रहे थे कि इससे हम लोग इसको प्रोपाउंड करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, तो लोगों में मास्क के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी। इसी बीच आइडिया आया क्यों ना पुलिस, हमारे पास 20 से 25 के बीच थाने हैं, तो हर थाने में हम लोग 5-5 हजार मास्क बांट दे लोगों में, तो एक अच्छा नोवेल काम भी होगा। लोगों को, बहुत सारे लोगों को जरूरत रहती है, और एक अच्छा कम्युनिटी पुलिसिंग का वो भी एक प्रोग्राम हो जाएगा जिसमें लोगों में पुलिस की गुडविल जाएगी। लेकिन जब ये हमने प्रचारित किया तो आप विश्वास करिए, पीपल जस्ट केम इन ह्यूज नंबर्स टू पुलिस कि आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है, मास्क का हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम लोग भी डोनेट करना चाहते हैं। और हमने कहा ठीक है, आप डोनेट करना शुरू करिए, हम लोगों को ये मास्क बंटवाएंगे, जैसे फूड पैकेट्स बंटवा रहे हैं। तो लगभग 14 से 15 लाख के बीच हमारे पास मास्क आ गए। फिर हुआ कि इतना मास्क हम बांटे कैसे, और हमारा आइडिया था कि हम इसको, चूंकि एक ये अवेयरनेस ड्राइव है तो इसको रक्षाबंधन के दिन ही करना है, तो इसकी एक स्ट्रेटजी बनाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर बीट कांस्टेबल हमारा हर गांव में रहता है, वार्ड में कोई हमारा कांस्टेबल जो उसको लुक आउट करता है, वो वहां के आंगनवाड़ी, कोटवाल, सरपंच, उनको साथ लेकर के, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को साथ लेकर के मास्क उनके पास पहुंचा दिया जाए, और वो संबंधित जो व्यक्ति है या टीम है, एनजीओज भी हैं, वो मास्क को बांट देंगे। और एक दिन पहले हमने सारे मास्क लोगों तक पहुंचाए, और रक्षाबंधन के दिन 12.37 लाख मास्क जो है हम लोगों ने एक दिन में बांटा, जो अपनी तरह का एक अनूठा रिकॉर्ड भी बन गया। और कई सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली एजेंसियों ने हमसे कांटेक्ट किया कि ये तो अपनी अनूठी कैटेगरी में अनूठा रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत ही नोवेल आइडिया था, एक बहुत बड़ा गुडविल गेस्चर था, लोगों में पुलिस का मैसेज बहुत अच्छा गया, और ओवर द टॉप जो हमारा उद्देश्य था मास्क के प्रति अवेयरनेस फैलाना, उसमें हम लोग सफल रहे। Brilliant. Congratulations to you on this extremely novel venture, and I'm sure the message would have gone out state-wise, because I was reading media ने काफी बखूबी इस
खबर को लोगों तक पहुंचाया, बहुत बधाई आपका। हम लोगों ने ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस ने भी कोविड के पीक पे कुछ पुलिस फोर्स के साथ काम किया। मैंने नोएडा पुलिस के साथ काम किया, हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ भी काम किया। और as a student of communication, it was extremely heartening, and somebody who has worked with and for the police for over 5 years now, I was so happy to see the kind of emotional outpouring of gratitude for the police. Perhaps for the first time in Indian history, post-independence, there was so much of awe, respect, and gratitude for the police force, because you are aware more than anyone else. One rotten apple and there is this stereotype. But ये कोविड का जो समय था उसमें इतना स्नेह, प्यार, और उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। जिस तरह से पुलिस फोर्स ने, आपने और पूरे देश की पुलिस फोर्स ने इतना अच्छा काम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ illustrious IPS officers like you, I think it was momentous. पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग की जो बात आती है तो उसमें जैसा कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। नाउ द चैलेंज फॉर लीडर्स लाइक यू फ्रॉम हियर ऑन इज टू सस्टेन दिस इमेजरी, बिकॉज जो लोग जानते हैं उनको पता है कि बहुत सारा अच्छा काम पुलिस करती है, लेकिन फिर भी एक परसेप्शनल डेफिसिट है, यू नो। मैं उसको कहता हूँ कोविड पुलिसिंग हैज massively enhanced the image of the police. Now, how do we sustain this? What are your thoughts, Santosh Kumar Singh ji, as you go along on this? नवनीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि फर्स्ट टाइम पीपल they recognize police as their saviors, and for us it's really very important challenge, crucial task, how to maintain this image, public image. There was a learning for COVID time for police also. If you work for people sincerely, they will have gratitude towards you, they will admire you, they will appreciate you. So this learning has gone down. Now our constables, our officers, they want to continue their good work, and they want goodwill of the people should be there for them in future also. And if you do their job very sincerely, then certainly it is going to happen. Unfortunately, whosoever approach police is always in some negative environment. They come either to report some issue, or sometimes they are like restricted for something where policemen are deployed. So negative, that interaction leads to negative image of police. Even whatever we do, if even we do some justice to somebody, there is always other party who gets dissatisfied, and they keep complaining for the complaining about the police and have all the ill wills towards policemen. And most important is like some way our policemen, our force is also not that way people friendly. If we are people friendly, which we are continuously telling to our men, certainly it is going to change our image, and the good image, goodwill which we have got, it will continue. जी, मैं तो पत्रकारिता से भी आता हूँ, 12-13 साल मुख्य अखबारों में काम करने का मौका मिला, और those who are supposed to be talking, I mean, I try my best even now as a columnist to do, but there are good stories that must be celebrated. अगर आप हमारा देखें, जैसे गुड ब्यूरोक्रेट्स इंडिया का जो पंच लाइन है, we celebrate good governance. Now, how do you look at, Santosh ji, police as an institution can help in scaling up the acceptance and visibility of good governance? I am for one, for sure that there is good governance. There are great stories like yours. How do we scale it up further?
See, as I said, uh, as we do more good things, we be more responsive, more transparent, people friendly. Certainly, people will appreciate policing and further the government work also. Like police is a very strong and visible arm of the government. So governance, good governance, the stories will certainly going to help everybody, and particularly the good stories about policing will have more impact on the governance issues. If somebody comes to Thana and he is satisfied, he is well taken care, taken care, and he is like helped, and he is treated well. So certainly he will have all the goodwill, the reputation about the police. And most important is like uh, police is the one of the first responder when people are in need and in crisis. And how policemen behave or respond gives an image to the government machinery. Many times our constables, traffic constable, uh, who otherwise do very good in round the clock, but sometime once they misbehave with somebody, it gives a bad image. Some video goes viral, and certainly all the good work which had been done gets washed up. So what is important is like we work for the police, work for the public, and the colonial mindset needs to be changed. Once we do, once police becomes public's police, लोगों की पुलिस अगर हम बन जाए, तो निश्चित रूप से जो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पुलिस एज इंस्टीट्यूशन भी गुड गवर्नेंस के हम सहभागी बनेंगे, और गवर्नमेंट को एक अच्छी इमेज भी देंगे, और लोग भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। जी, राजीव जी, हमारे अगले प्रश्न का भी आंसर संतोष जी ने दे दिया, तो आप कुछ सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाह रहे थे संतोष जी। संतोष जी, आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो यूज है ये डबल एज्ड वेपन की तरह यूज हो रहा है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट बाय एंड लार्ज सोशल मीडिया से मुझे लगता है कि फायदा ज्यादा ही हो रहा है। इट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल, एज ए फैसिलिटेटर बाय द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और गवर्नेंस में भी ट्रांसपेरेंसी के लिए, डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, इन सारी चीज़ों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। तो आप जब हम पुलिसिंग की बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर है टू द क्राइज ऑफ द पीपल, टू द नीड्स ऑफ द पीपल, तो उसमें इसको हम किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपका जो डिलीवरी मैकेनिज्म हो, जो रिस्पॉन्स हो, उसमें और काफी इम्प्रूवमेंट हो? देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है, और nobody can avoid it. Either you like it or not like it. So better you like it and utilize it. That is a important fact for us. और आज इस चीज को हम लोग देख भी रहे हैं कि almost all the police units, either in district units or different organizations, they are on social media platforms. They are on Instagram, they are on Facebook, they are on Twitter, and they are everywhere. And what happens is like this has become very important feedback mechanism, which is very important. See, मैं अभी यही कह रहा था कि हम लोग लोगों के लिए लोगों की पुलिस अब बनने की जरूरत है, तो हम इसमें कितने शॉर्ट हो जाते हैं, कितनी कमियां रहती हैं, ये सोशल मीडिया से के प्लेटफॉर्म से जब फीडबैक आता है तो हम उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आज के समय में लोग जो किसी भी देश के किसी कोने में हो, कहीं भी मदद चाहते हो, people who are far away in distant places, they can get help from the police, and police also can get help from the public in using the social media platform. और पुलिस लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है, और सबसे बड़ी बात जो पुलिस की जो थोड़ी अच्छी इमेज बन रही है, जैसे अगर कोविड का समय
में हम देखे कि पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन वही जब स्टोरी, गुड स्टोरीज वर स्प्रेड, नवनीत जी बता रहे थे कि आपने बहुत सारी गुड स्टोरीज पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स की आपने जब लोगों के सामने आपने भी फैलाई है, तो ये जब चीजें जब हर तरह से बढ़ती है और सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ती है, तो एक अच्छी इमेज भी क्रिएट होती है, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, लोगों को ये भी लगता है कि अगर कुछ गलत भी होगा तो उसको हम लोग पूछ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म भी बढ़ता है। और दूसरी टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आज देखिए तो देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड CCTNS, जिससे सारे थाने के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे FIR ऑनलाइन हो रहे हैं, कंप्लेन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। मैं आपकी ही ब्यूरोक्रेट्स इंडिया पे एक स्टोरी देख रहा था बिहार की किसी की, शायद सीहोर SP की, कि उन्होंने एक ऐप बनाया है कि जिसकी वजह से आप कंप्लेन अपनी लॉन्च कर सकते हैं, SP से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं, रिवर्स फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। तो ये सारी चीजें ये टेक्नोलॉजी की देन है। CCTNS इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। CCTV अनदर जो टूल है, आप देखिए कि पुलिस इसका कितना इफेक्टिवली यूज कर रही है। मैं आपको बताऊं कि पिछले महीनों ही हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, एक लूट का मर्डर हुआ, ATM से लूट हुआ, 2 लोगों को मर्डर करके कुछ अपराधी उनको मर्डर करके ATM कैश लेके वेपन लहराते हुए भाग गया। और वो कोई भी क्लू नहीं था, कोविड का समय था, पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उनकी जो CCTV में जो इमेज कैद हुई थी उसको हम लोगों ने सब जगह स्प्रेड किया। तो हमारे जो बीट कांस्टेबल लेवल तक लोगों को जोड़ के उन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप में जब उसको स्प्रेड किया गया, somebody saw that picture and told us कि सिमिलर हुलिया वाले लोग जो है इधर जाते दिखे और इस घर में घुसते हुए दिखे। उसके बाद हमारी टीम बनाई गई और ऐसे लगातार हमें स्टोरी वो इनपुट्स आ रहे थे, हजारों इनपुट्स आ रहे थे। उसमें फाइनली एक इनपुट्स को हम लोगों ने दूसरे तरीके से जब कोरोबरेट किया तो वो सही लगा और उसमें हम वी वर एबल टू कैच दोस क्रिमिनल्स। तो दिस इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वंस यू गेट कनेक्टेड यू गेट अ फीडबैक। FSL में आप देखिए कि फोरेंसिक में कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके पुलिस इज इफेक्टिवली डूइंग इन्वेस्टिगेशन। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, they have become very important tool, a very handy tool for police. जी, अब हम मुझे पता है कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के आरक्षी अधीक्षक हैं और आपने बहुत समय दिया। हम प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लोगों को नाम बोल के धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा आप सबों से निवेदन है कि ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के वेबसाइट पे जाएं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें। संतोष जी और इनके बहुत सारे साथी जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको हम आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। संतोष जी, हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथियों ने, ये युवा साथियों ने बोला कि मुझे थोड़ा सा आप टिप्स भी दिलवा दीजिएगा एक IPS ऑफिसर बनने के लिए, हमें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। मैं जब निकल के आ रहा था दफ्तर के लिए, तो मैंने अपने बेटा जो मेरा 15-16 साल का है, मैंने बोला कि संतोष जी जो एक छोटे से शहर से आके और अपना उन्होंने खुद एक पथ बनाया। He excelled in whatever he did. Not only he cleared the IPS, but even now he keeps experimenting and innovating. So you are a role model, Santosh ji, for many youngsters. What message, some of the message would you like to give? हमारे साथ कुछ साथी जैसे राजेश त्रिपाठी जी, अमित पांडे जी, अभिनव सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक वर्मा, आयुष अग्रवाल, अजीब कुमार, बेक अशोक, दिवानगन, अविनाश, भीष्म शर्मा, चमन सिन्हा, दीपक मैत्री, धनराम राठौर, धर्मेंद्र सिंह, दिलीप यादव, दिनेश सिंह, जयप्रकाश शर्मा, झामलाल, मार्को, कमलेश्वर सिंह राथला, कन्हैया लाल, कौशल्या साहू, खगेश्वर नेतम, खिलेश्वर कटाकवार, मुरलीधर जायसवाल, नेल्सन कुजूर, पीताम्बर पटेल, प्रगति जायसवाल, प्रमोद सागर राजगढ़, राजेंद्र प्रसाद भैया, रुपेंद्र साई, संतोष देशमुख, सतीश जगत, शिवम पांडे, श्याम प्रसन्न,
सुदर्शन राणा, उत्तम साहू, विनोद मिश्रा, विशाल पटेल और बहुत सारे साथियों का फेसबुक पे प्रश्न आ रहा है कि आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी विधा है, कौन सा गुण है जिससे वो भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग और एक पदाधिकारी बन सकते हैं। Thank you so much Navneet ji for all kind good words for me. देखिए मैं ऐसे सारे लोग जो यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए ये कहूंगा कि यूपीएससी का एग्जाम ना केवल एक कठिन एग्जामों में से एक है, बल्कि ये डिमांड करता है कुछ बहुत ही स्पेसिफिक विशेष क्वालिटीज जिसको आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं रिटन और जो दोनों रिटन एग्जाम होते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसमें और उसके वो जो फॉर्मेट है उसमें दे एक्सपेक्ट कि द कैंडिडेट इज कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कैंडिडेट इज कमिटेड टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कैंडिडेट इज हैविंग सम ethical good ethical character, the candidate is well versed in communication skill. So these all qualities you must check which actually UPSC require. और जब आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, जब उसके हिसाब से मेहनत करते हैं, तो आप फोकस स्टडी करते हैं। देखिए इसमें ये भी कहा जाए यूपीएससी में जितनी भी मेहनत की जाए कम है, लेकिन इसमें जरूरी है कि एक प्लान्ड स्टडी की जाए। स्ट्रे स्टडीज विल नॉट हेल्प। एक प्लान्ड और जो एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाई हुई तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफल हो सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस चीज को पसंद करते हैं, जिस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, अगर आपके इंटरेस्ट का है तो आप उसमें और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा बता पाएंगे। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर आपका इंटरेस्ट यूपीएससी का है तो सिर्फ यूपीएससी एक चीज है, जमाने में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपनी एबिलिटीज को पहले नाप लीजिए, आप उसके लिए काबिल हैं तब तो ठीक, फिर भी प्रिपेयर करिए। लेकिन इसके अलावा एसएससी एग्जाम है, स्टेट पीएससी एग्जाम है, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जिनको आप करके आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जहां भी आप रहें उसमें आपका मन लगना चाहिए, आप उस काम को पसंद करना चाहिए। और यूपीएससी के प्रिपेयर जो भी करता है, मैं उसको हमेशा अंतिम बात जरूर कहता हूं, वो ये है कि आप हमेशा फॉल बैक ऑप्शन जरूर रखिए। एग्जाम इतना टफ होता है, अगर आप सब कुछ लुटा कर इसकी तैयारी करेंगे तो कई बार अपने को आप लुटा हुआ पाएंगे। तो और मेहनत करिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और अंतिम लाइन मैं कहूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अगर मन से मजबूत रहेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल रहेंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे। थैंक यू। एक उदाहरण आपके सामने है, हमारे साथियों के सामने। मैं भी बनना चाहता था आईएएस आईपीएस। हम लोग एक ही विश्वविद्यालय में गए, मुझे पता है राजीव जी भी कोशिश किए ही होंगे, तो नहीं बन पाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने हार मान ली, फिर मैंने पत्रकारिता किया, फिर कम्युनिकेशन में आज अपना काम कर रहे हैं। तो संतोष जी का कहना है कि वो कोशिश करो, पूरा प्रयास करो आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होता है तो अपनी दुनिया उजड़ गई, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रश्न थे जिसका आंसर हमारे क्वेश्चंस के दौरान आपने दे दिया। आपका बहुत धन्यवाद संतोष जी, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में आप ये मैसेज, आपके कम्युनिटी पुलिसिंग, आपके चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग और आपके जितने तजुर्बे थे लोगों तक पहुंचेंगे। हम भी ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के माध्यम से और आगे पहुंचाते रहेंगे, आपसे और चर्चा करते रहेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जीवन में बहुत अच्छा करें। माय greetings and from Bureaucrats India family. Once again, I thank my friends, my team members from Grey Matters Communications, Sweta Bharti, Vigya Dwivedi, Naina Jha,
Pooja Rai, and Rajiv Ranjan Roy. Thank you all very much, and see you again sometime soon with yet another edition of BI Dialogue. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you.